Friends, the violence and attack on Nankana Sahib shrine in Pakistan which happened on Friday, is dastardly and reprehensible. We ask the Pakistani government to take immediate action against the culprits, as well as protect the property and dignity of the Sikh community along with the other minority communities in Pakistan. There have been consistent acts of violence not only on people but on religious places, minorities in Pakistan. There have also been constant human rights violations against the minorities over decades. The number of minority community in Pakistan have been subjected to threats, forcible conversion, rape, violence in every method one can think of, and above all, death in case of when they put cases and falsely implicate people on blasphemy case. That is why the population of minorities has, under a planned method, constantly been subjugated and is constantly reducing. The 23% at the time of partition is today less than 3%. The result is for everyone to see. The death which is happening under very famed and notorious blasphemy law, which is draconian in nature. We've seen the case of Aisha Bibi, which happened, and the Aisha Begum was sent to Canada subsequently, and she's a Christian. That is why the population of minorities has consistently reduced in the country. The persecution continues unabated since the creation of Pakistan, which is since 1947, and resulting in forced migration of people into India. And that is why what we see today, the spate of migrants in the country, whether it's 69, 71, and post that, lakhs of women were raped, lakhs of men have been murdered and killed, and places of worship has been desecrated. Nankana Sahib is only symbolic in nature, but this kind of desecration has been going on. Nankana Sahib is a huge symbolic importance because that is the Dharmsthan of Baba Nanak, and which is relevant across the globe to all the Sikhs, because that's the holiest shrine for Sikhism. That's the place where Baba Nanak was born. And they have even threatened that they will change the name of Nankana Sahib into Ghulam-e-Mustafa, along with the fact that in 21st century, this is the condition which Pakistan is, which is existing in Pakistan, and it is not conducive to the ethos of multiculturalism, of multi-religious societies and secular societies, and the human rights which exist in any country. There have been thousands of evidences where young girls have been picked up. They have been forcibly, whether from Sikh community, Hindu community, Christian community, and other minority communities in Pakistan, they have been forcibly abducted from their houses and homes, converted to Islam, and married off to Muslim boys, while the police, government, and other agencies are part and parcel of the process. The courts have supported the perpetrators by legalizing and causing injustice. This not only justifies the necessity of an act like CAA, but also stresses the need for its immediate implementation. Pakistan now proves that CAA is right and it is timely. We severely condemn the gruesome and violent act such as which are being caused on the important shrine of global Sikh faith. It is gruesome in nature as someone is equivalent to attacking Kaaba or Jerusalem. The Pakistan government and society must know that Pakistani Sikhs have been the offsprings of that soil and continue to have faith and duty towards that soil, and thus did not migrate and chose to remain in that state. And they were products of undivided India. They have their homes, they have their ancestral homes in Pakistan. Therefore, we demand that Pakistan government must protect their lives, dignity and basic human rights without failure. मित्रों, पिछले शुक्रवार को जो अभी शुक्रवार गया, उस पर पंजाब के नानकाना साहब जो गुरुद्वारा है, उस पर एक भीषण घटना की, और हिंसक घटना के दौरान बहुत सारे लोगों ने उस पर आक्रमण किया. ये बहुत कायरतापूर्ण और निंदनीय विषय है.
हम पाकिस्तान की सरकार से नानकाना साहब में जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वहां रहते हैं उसकी जान माल और गरिमा की रक्षा के लिए तत्काल उपाय करने की अपील करते हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज को भी पता होना चाहिए कि जब आप मानव अधिकार की दुहाई लगाते हैं तो देखिए पाकिस्तान का क्या नजारा है और किस तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हिंसा के कृत्य किए जा रहे हैं, जबरन धर्मांतरण होता है और कठोर ईशा निंदा के तहत जो ब्लेस्फेमी का कानून है उसके तहत यहां तक की सजाए मौत भी दे दी जाती है। लड़कियों को उठा लिया जाता है, जमीनें जब्त हो जाती हैं और जब ये सब चीजें चल रही होती हैं तो लोगों के पास कोई और राह नहीं है, बल्कि वो लोग जब दाह संस्कार तक का अधिकार नहीं है तो वो लोग किसी ना किसी बहाने भारत एक बहुत लंबे समय से आ रहे हैं। कोई 1969 में आया, कोई 71 में आया, कोई 75 में आया, कोई 78 में आया, कोई 89 में आया, कोई 90 में आया और सीए का कानून उन्हीं लोगों के लिए लाया गया। नानकाना साहब की हरकत के बाद तो और साबित होता है कि सीए का कानून क्यों आवश्यक था और वहां पर पाकिस्तान के अंदर वही सब हरकतें जो 47 के समय डायरेक्ट एक्शन डे जिन्हों ने जो करवाया था, तकरीबन उसी तरीके की हरकतें आज तक हो रही हैं। नानकाना साहब सोशल मीडिया का समय तो आप सबको दिखाई दे गया, लेकिन गांव देहात अंदर जो चीजें होती हैं वो सबको दिखाई भी नहीं देती और जो प्रताड़ित वर्ग के लोग, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, वो भारत की तरफ अपना रुख करते हैं क्योंकि भारत का ही वो किसी जमाने में हिस्सा थे। और सीए का जो महत्व है, आज मेरे को लगता है कि जो लोग शाहीन बाग में बैठे हुए थे या केरल की जो असेंबली है उन सबको समझ आया होगा और अब तक कांग्रेस पार्टी के मुंह से तो मैंने एक जबान किसी की खुलते हुए नहीं सुनी है और मुझे नहीं पता कि वो सिद्धू पाजी किथे नट गए ने, वो कहां भागे हुए हैं कि वो अभी भी जाके गले मिलना चाहते हैं आईएसआई के चीफ को, तो जरा कांग्रेस को पता करना चाहिए क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो आप सबके सामने है और लगातार इस तरीके की जो हरकतें हैं 47 से आज तक 2019 तक होती आई हैं और होती रही हैं और इसीलिए सीए का कानून लाया गया। आज आपके माध्यम से पूरे दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि जो सिख मजहब की सबसे पवित्र गुरुद्वारा है, जहां पर बाबा नानक का जन्म स्थान है, उसके साथ अगर इस बर्बरता का व्यवहार हो सकता है तो आप सोचिए आए दिन वहां पर जनता के साथ क्या व्यवहार होता होगा। और ये व्यवहार केवल सिखों के साथ नहीं हो रहा, बल्कि सिखों, हिंदुओं, ईसाइयों, ज़ोरास्ट्रियंस, जितने भी लोग जिनको पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं है, यही कारण है कि लगातार उनकी संख्या घटती जा रही है। और चाहे वो केरल की असेंबली वाले हों, चाहे शाहीन बाग में बैठे हुए लोग हों, मैं उन सबसे आज दरख्वास्त करना चाहती हूं कि शायद ये नजारा देखकर आपको सीए का महत्व समझ आ गया होगा और देश के अंदर जो घुसपैठिए हैं उनके अंदर और जो परसिक्यूटेड लॉट है, जो प्रताड़ित शरणार्थी हैं, उन दोनों का अंतर भी समझ आ गया होगा। ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड क्लास दोनों का अंतर भी समझ आ गया होगा। और इसी के साथ आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एक में तरुण जी का हो जाए। मेरा सादर अनुरोध है राष्ट्रीय सचिव माननीय तरुण चुग जी से। मैं पंजाब से आता हूं। पंजाबियों के लिए और सिखों के लिए ननकाना साहब बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो गुरु नानक साहब का जन्म स्थान है और जिस तरह कल की घटना है, गुरुद्वारे के अंदर श्रद्धालु थे, बाहर जिहादी उमादी भीड़ थी, जिनके बयान आपने सोशल मीडिया पर देखे भी हैं और जिस तरह उन्होंने धमकियां दी हैं गुरुद्वारे का नाम बदलने के लिए, सिखों को वहां से जाने के लिए, और ये वही लोग हैं जिन्होंने उस महान गुरुद्वारे के ग्रंथी की बेटी को पहले जबरन अगवा किया, निकाह किया और पूरे इंटरनेशनल जब मीडिया ने इसको उठाया उसके बाद ये घटनाएं हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है
और जिस तरह आज भारत की सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक जिम्मेवाराना बयान जारी कर पाकिस्तान को उनकी रक्षा व सुरक्षा की सिख समुदाय के लोगों के जहां भी हैं और गुरुद्वारे की सुरक्षा की बात कही है, मैं भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का धन्यवाद करता हूं। और वहीं जहां यह घटना दुखद है, वो घटना एक संकेत भी दे रही है कि जब देश आजाद हुआ था तो दो प्रांत, बंगाल व प्रांत पंजाब, जिसने विभाजन का सबसे ज्यादा दंश झेला, लगभग 20 लाख लोग पंजाब के और बंगाल के उस कत्लो-गारत में मारे गए थे। लगभग 1,45,00,000 लोग विस्थापित हुए थे। आज जो पंजाब के अंदर उस समय आ गए और जो 23% पंजाब के लोग वहां के पंजाब में, अटक में, बावलपुर में, चकवाल में, साहिवाल में, जेलम में, रावलपिंडी में, गुजरावाला में, सरवोदा में, मुल्तान में, सियालकोट में रह गए। ये एक ही परिवार के लोग थे। एक भाई यहां आ गया, एक वहां रह गया, बहन वहां रह गई और भाई यहां आ गया। एक पिता का बेटा पाकिस्तान में 23% आबादी में रह गया, एक पिता का बेटा भारत में आ गया। और उस समय की सरकारों ने, दोनों सरकारों ने, जो इस समय भारत के अंदर, उस समय सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान की सरकार लियाकत अली जी ने, दोनों ने एक संयुक्त समझौता कर उनकी सुरक्षा की गारंटी दी थी। आज इमरान खान जी बताएं कि ये घटनाएं और घटनाओं के बाद जो उन्होंने वीडियो डाला, जिसमें बांग्लादेश का वीडियो भारत के नाम पर डाल दिया। घटना हो रही है पाकिस्तान में, ननकाना साहब पर हमला हो रहा है, गुरु बाबे के घर पे हमला हो रहा है, प्रथम गुरु के स्थान पर हमला हो रहा है। भक्ति काल के सबसे बड़े विचारक और भक्ति काल के सबसे बड़े समाज सुधारक, कास्टिज्म के खिलाफ लड़ने वाले सबसे बड़े व्यक्ति, जो सिख धर्म के बाहर भी जिनको लोग पूजते हैं, नानक नाम लेवा पूरे वर्ल्ड में, हर धर्म में, उनके जन्म स्थान पर जो घटना हो रही है, यह घटना ट्रेलर है पिछले 70 साल से जो फिल्म वहां पर चली है, जिस फिल्म ने 23% से लगभग 2.5-3% वहां पर सिख और हिंदुओं को छोड़ दिया। भाजपा उसकी निंदा भी करती है। और भारत के अंदर जो लोग 2014 से पहले तालिबानी, जिहादी, उत्पीड़न से तंग आकर अपनी बेटियों को और अपने बच्चों को बचाकर आए थे, उनको नागरिकता को जो अधिकार दिया है, जो सीएए दिया है, आज उसकी सार्थकता सिद्ध हो रही है। और मेरी विनती है, जो भारत के अंदर उसका विरोध करने वाले लोग हैं, मैं हैरान हूं, जिस पंजाब ने अपना आधे से ज्यादा भाग खोया है, 20 लाख बेटे बेटियां खोए थे, उस पंजाब का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा है, उसे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के पंजाब में बलात्कार हुई बेटियां, उत्पीड़न हुई बेटियां, जबरन निकाह हुई बेटियां, वहां पर हजारों की तादाद में लोगों के कत्ल कर दिए गए, केवल इसलिए कि वो एक खास धर्म से हैं, सिख धर्म से हैं, हिंदू धर्म से हैं। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को उनकी चीख पुकार नहीं दिख रही। ईश निंदा के नाम पर लटकाए जा रहे, सूली पर लटकाए जा रहे लोग नहीं दिख रहे। उजड़ कर आए वो 20% लोग नहीं दिख रहे। टोटल जो आबादी है पाकिस्तान की अल्पसंख्यकों की, उसका लगभग 95% लुप्त है। आज भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से पूछती है, वो 95% लोग कहां गए? टोटल अल्पसंख्यकों का 95% जमीन में चले गए, मार दिए गए। वो जो नेहरू लियाकत अली समझौता है, उस समझौते को तार पीड़ो करने का काम पाकिस्तान ने किया है और पिछले 70 साल से वो जारी है, जिसका एक उदाहरण, क्योंकि आज मीडिया जिंदा है, सोशल मीडिया जिंदा है, हम सब ने देखा है। आज भी पंजाब की माएं, बूढ़ी माएं, दादियां रावी, चनाब, जेलम, सतलुज उसको याद कर कर अपने त्योहार मनाती। वो हमसे बिछड़ गई थी क्योंकि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर 1947 में विभाजन स्वीकार किया था। हमने बलि दी है 20 लाख बेटे बेटियों की।
इसलिए वो दुख हमें भूलता नहीं। और उसके बाद उससे बड़ा दुख कि जो हमारे भाई बंधु वहां रह गए थे, हमारे परिवार के लोग जो वहां रह गए थे, एक भाई यहां आ गया, एक पाकिस्तान में रह गया, और वहां रहने पर उस समय की दोनों सरकारों ने गारंटी दी थी, वो गारंटी की क्या आज स्थिति है? पाकिस्तान जनता को बताए कि लोग कहां गए। और मेरी आपसे के माध्यम से विनती है, वो श्रीमती सोनिया गांधी जिनकी आंखों में आंसू आते थे, वो आंसू आज सूख क्यों गए? आज जब पाकिस्तान के अंदर बेटी का जबरन निकाह होता है, बंदूक की जोर पर उसको बलात्कार किया जाता है, तो प्रियंका गांधी जी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही? अब राहुल गांधी जी चुप क्यों हैं? ममता जी चुप क्यों हैं? ये शहरी नक्सली चुप क्यों हैं? क्या वो बेटी एक संप्रदाय, सिख संप्रदाय की है इसलिए? क्या वो 95% अल्पसंख्यक आबादी की बेटियां, जिनको जबरन धर्म परिवर्तित करा दिया गया, जिनके ऊपर बलात्कार हुए, घर छोड़ने पड़े, परिवार छोड़ने पड़े, अपनी जमीन छोड़नी पड़ी, उनके लिए इनकी आंखों में आंसू नहीं? वही भाषा जो पाकिस्तान में जिहादी बोल रहे हैं, जो भाषा अफगानिस्तान में तालिबानी बोल रहे हैं, जो भाषा और आक्रमण और नजरिया, भाषा, आक्रमण और नजरिया तालिबानी और जिहादियों का है, वही नजरिया, वही भाषा हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस और वामपंथियों का है। दुर्भाग्य है, आपको भी दर्द नहीं है वहां के अल्पसंख्यकों की लाशों पर, और वहां जिहादियों को भी दर्द नहीं है वहां के अल्पसंख्यकों की पर हो रहे अत्याचारों पर। तो भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है। देश में बैठे उन तथाकथित अल्पसंख्यक प्रेमियों से आंखों में आंसू तो ला दीजिए, एक दो शब्द तो कह दीजिए। और देश के ऐसे प्रांत के मुख्यमंत्री, मैं हैरान हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करके कॉन्स्टिट्यूशन के पद पर बैठा व्यक्ति देश के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं को छोड़कर धरनों पर जा रहे हैं। जवाब देना आज, कैप्टन साहब जवाब दीजिए, केरल के मुख्यमंत्री जवाब दीजिए, सोनिया जी जवाब दीजिए। क्या अभी भी सीएए के बारे में आपको समझ नहीं आया? क्या आपको आज भी पिछले 40 वर्षों से, 30 वर्षों से, 20 वर्षों से, 10 वर्षों से, 2014 से शरण लिए हुए शरणार्थी और घुसपैठियों का फर्क समझ नहीं आया? और मैं धन्यवाद करता हूं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, कि जिन्होंने हमारे पंजाब के लाखों करोड़ों भाई जो पाकिस्तान में बैठे हैं, उजड़ गए, उनके दर्द को समझा। आज भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की भाषा पंजाबी है, लेकिन पंजाबी जिससे जुड़ता है वो सिख मार दिया गया। उस दर्द को समझे और सीए का आज सार्थकता समझ आई। क्वेश्चन देखिए, अकाली दल ने जो बात कही थी, मेरे को लगता है कि वो उनको समझ आ गई होगी। वो एक टेक्निकल प्रश्न था, और मैं उसके मामले में सिर्फ दो आपको उदाहरण देना चाहती हूँ कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई और जूस का परसिक्यूशन हुआ, यानी जूस के ऊपर इस जो यहूदी मत को मानने वाले हैं उनके ऊपर जब इस तरीके के हमले हुए और अल्पसंख्यकवाद से उनको मारा गया, तो बहुत सारे देशों ने जूस को शरण दी थी। सो जूस गॉट दी स्टेटस आफ्टर बीइंग persecuted during World War II. That doesn't mean
that status given to Jews was against Christians, or the same status should have been given to the Christians as well. The persecuted class is a special class. The second example is the example of Yazidis. So Yazidis have been persecuted by ISIS in Syria war, and when Yazidis have been given the refugee status and they have been given citizenship of various countries, that doesn't mean the other following Islam or other areas, other religions could also be put at the same pedestal as the Yazidis. So persecuted class is the distinction mark, and that class cannot be compared with other classes. The oppressor or the oppressed cannot be put in the same category. नहीं, हमें तो समझ ये पहले से आ रहा है, मगर जिनको समझ नहीं आ रहा, मेरा प्रश्न उनसे है। इसमें दो बातें स्पष्ट होती हैं कि ये सब देखने के बाद, आंखों के आगे देखने के बाद, तो समझना ये है कि इस तरीके की जो हिंसा है, जो वायलेंस है, जो मैं पहले हिंदी में इसका जवाब दे देती हूं, जो हिंसा है और जो प्रताड़न है अल्पसंख्यकों का पाकिस्तान, बांग्लादेश में पूर्व में हुआ या अफगानिस्तान में तालिबान के समय पर हुआ, और जिसके कारण लोग भारत में आ गए, तो सीएए का कानून उन लोगों पर लागू है जो 2014 से पहले भारत में आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सीएए के विरोध में खड़े हुए हैं वो किसी मोटिवेटेड तरीके से खड़े हुए हैं, कोई उनकी मंशा कुछ और है, क्योंकि उसमें दो विषय सामने हैं। आप एक तो डिनाइल मोड में है, आप मना कर रहे हैं कि ऐसा तो अल्पसंख्यकवाद कहीं हुआ ही नहीं, ऐसी हिंसक घटनाएं हुई ही नहीं, लड़कियों के बलात्कार हुए ही नहीं, लड़कियों को उठाया ही नहीं गया, मारा ही नहीं गया, डिनाइल मोड में है। और दूसरी क्लास जो उससे भी भयानक, खतरनाक और घटिया क्लास है, वो क्लास है जो कहते जो हुआ वो सही हुआ। एक उसके पक्षधारी जो है वो उससे भी ज्यादा जो घिनौने हरकतों में लिप्त है, और एक क्लास है जो कि उसको मानती नहीं है। तो दोनों तरीके से आप देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। Explain the same thing in English. Question is interesting. What is happening in India by certain groups which are with a vested interest and motivated class, because it amounts to denial that there has ever been violence to people who are non-believers by the Islamists, by the jihadis. And worst ones are the ones who say whatever has happened is happening, and that's okay. They are okay with that. So either way, when you look at this situation, you know that CAA was brought in with a good intention for regularizing the people who are already in the country and who have come because of many such violent incidents which have taken place in Pakistan, in Bangladesh, and the earlier Afghanistan regime, which was a Talibani regime. चेहरे पे कालक पुती हुई है। जो हरकतें उन्होंने की हैं सीए को लेकर पूरे देश भर में, अगर दिल्ली की बात करूं तो मैं दिल्ली के बारे में थोड़ा विशेषकर जानती हूं। इनके एमएलए, पूर्व एमएलए मतीन अहमद इन्वॉल्व रहे सीलमपुर के अटैक्स में। इनकी पार्टी के संगठन की तरफ से वकालत करने वाले महमूद पराचा इन्वॉल्व रहे भाषणबाजी में जामा मस्जिद के अंदर। आसिफ, इनकी पार्टी के ही कुछ लोग हैं, वो इन्वॉल्व रहे। और सिख दंगे के तो ये पहले से ही आरोपी हैं। तो इनके तो अपने चेहरे पूरी कालक से पुते हुए हैं और साफ दिखाई देता है कि किसके पक्षधर हैं और किस तरफ खड़े हैं। That's right. That's right. Good question, ma'am. The idea of putting the date as 31st December 2014 is that all these people have been living in the country for much longer than 5 years and 12 years and 14 years.
but they were treated as illegal residents and there were cases of FRRO made on them. And when criminal cases were brought against them because they overstayed the visa rules, and their passports got expired, and thus 2014 when our government came into power, from that time till this time it makes 5 years. 5 years, so 2014 to 19, at least the ones who are already in the country, they get equalized rights. Whatever happens subsequently will be dealt with subsequently, but the ones who are in the country, they get covered by the 5 years, and once for all, the registration process gets over. प्रत्युत प्रत्युत One state government, Kerala government has assembly has passed a resolution that they will not follow the central law. Now the CM is also told the state to do the similar thing. So how will you react to this? Do you want the central to take some kind of action against them? That action lies because this is directly, I mean, the day a petition gets filed in the Supreme Court, the order will come, but no need to give them that kind of importance. It's like me saying, I will make you an editor. I mean, do I have the authority to make any of you an editor? There is a process. There is a procedure. Now, citizenship is the bylaw under the Constitution of India, under Article 5 to 11, is the exclusive purview of the Parliament. The states have nothing to do with it. If states could do something, then the state of Rajasthan, especially the previous Chief Minister Gehlot and the present Chief Minister of Rajasthan Gehlot, would have given the citizenship long before, instead of writing 50 letters to the then central government to give citizenship. आमोद राय वो उनको 84 के दंगे याद आ गए होंगे, और कुछ लोगों के मन में तो दिल्ली चुनाव भी होगा, और जो कुछ जिस तरीके के बयान इन्होंने सीएए पे अभी तक दिए हैं, वो सबको याद आ रहा होगा कि भैया सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं कहीं से इनकी बयानबाजी सबके सामने आ जाएगी। अगर मन में दुख होता ना और इस विषय को समझ लिया होता, तो हमारी सरकार से पहले बहुत लंबे समय तक इनकी सरकार रही है और इन्होंने कई लोगों को कई बार नागरिकता दी है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत नहीं थी इनकी। असली बात तो ये है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे कि इंटरनेशनलाइज हो इनका मामला, कि जब भारत को लेकर, कश्मीर को लेकर चारों तरफ वो हल्ला बोलते थे, भारत की तरफ से 70 साल में आज तक आवाज नहीं उठी। और मेरे को इस पर हैरानी होती है, खून खौलता है कि किस तरीके की सरकारें यहां बैठी हुई थी जिन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की चिंता ही नहीं की, और वो अल्पसंख्यक कोई और नहीं, भारत का हिस्सा थे, वो भारतीय थे। संजय शर्मा प्लीज। भैया कट्टरता को प्यार से कैसे खत्म करेंगे? आप जाके गले भेजा तो था आपने सिद्धू को गले लगाने के लिए आईएसआई चीफ को, खत्म हो गया क्या? कट्टरता को प्यार से कैसे खत्म करेंगे? अब कसाई को आप भाई कैसे बनाएंगे? पूछ लीजिए इनसे। सिद्धू को भेजा था ना इन्होंने, क्या हुआ उसका हश्र? नानकाना साहब पे अटैक रुक गया क्या, या लड़कियों को उठाना बंद हो गया? यावरी रुका या बालाकोट रुका उसके बाद? बालाकोट रुका, क्या रुका उसके बाद? क्या रुका है उस सब के बाद? और जो आपने कहा श्रोमणी अकाली दल ने देश की आजादी के उसके तुरंत बाद मास्टर तारा सिंह श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष थे, उसका रेजोल्यूशन है कि वहां पर बैठे सिख और वहां रह गए गुरुद्वारे। और आपको शायद जानकारी होगी ही, हम लोग अपनी डेली अरदास यानी डेली प्रे में भगवान से मांग करते हैं कि वहां के गुरुद्वारों की संभाल, उनकी देखभाल, और वहां पर रह गए लोगों की वापसी, उनकी सुरक्षा की मांग करते हैं भगवान से। और इसलिए श्रोमणी अकाली दल ने हमारा समर्थन भी किया, हमारे साथ भी खड़ी रही सदन में, और आज भी श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष और उनके संसद में नेता, उनका इसके पक्ष में ही बयान आया है। जो लोग
जिनको कोई भ्रम है तो वो मास्टर तारा सिंह जी का वो प्रस्ताव पढ़ सकते हैं। हिमांशु, और जो सिख विरोधी वाली आपने बात कही कि वो क्या सिख विरोधी है, तो ये तो निश्चित ही है कि जिन्होंने कमलनाथ जी जैसे व्यक्ति को, जिसके बारे में चशमदीद गवाह है कि वो दंगे का नेतृत्व कर रहा था, जब उस दंगे में सिखों की दुकानें जलाई गई, धार्मिक स्थान जलाए गए, उनके शैक्षणिक स्थल जलाए गए, गलों में टायर डाले गए, उनको पाला गया, पोषित किया गया पिछले 40 साल। तो ये कांग्रेस का कांग्रेस के जो दिमाग में, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में सिख को उन्होंने हमेशा ही प्रताड़ित किया है, चाहे वो 84 हो तो चाहे आज पाकिस्तान में हो रहे हो, कांग्रेस की इस पर रहस्य में चुप्पी रही है। कि नहीं है कि सोनिया जी नहीं बोली, सोनिया जी तब भी नहीं बोली थी, और जब बोले थे राजीव गांधी जी तो उन्होंने उन कत्लो गारत का, 84 के कत्लो गारत का रामलीला मैदान में समर्थन किया था। और उनका व्यवहार भी बताता है कि कैसे जगदीश टाइटलर को, सज्जन कुमार को, भगत को, और एक लंबी लिस्ट है जिनको पाला गया, पोषित किया गया, बड़ा स्थान दिया गया, और आज के इस दशक में भी कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना के भेजा गया, जिसके खिलाफ आज भी चशमदीद है। हिमांशु, देखिए, आज का हमारा विषय यही है और हम इससे डाइवर्ट नहीं होना चाहेंगे। मैं आपसे अलग से बात करूंगी। सद्बुद्धि दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इनको सन्मति आनी चाहिए, मतलब सद्बुद्धि, सन्मति सब कुछ आनी चाहिए, क्योंकि कागज का टुकड़ा अगर उठा के पढ़ लिया होता तो राजनीति करना बंद कर चुके होते और देश के साथ खड़े होते। Who? पवार चौधरी पहले इमरान खान की वीडियो पे तो बताए कि वो वीडियो कहां की है जो उन्होंने कल ट्वीट की थी। इतना बड़ा भ्रम, पुरानी 7 साल पुरानी वीडियो, भारत के माथे पे झूठ की इबारत लिखने का नाम ही पाकिस्तान है, और जो फौज कह रही है वही इमरान खान बोल रहे हैं और वही ये बोल रहे हैं। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। I'm happy that Fawad has come up in response to the press conference. My request to Fawad would be that he should take charge and work against the people who have caused such a mayhem in Pakistan. Put them behind bars, take action against them, stop conversions, stop rapes, stop abduction. That's the duty which he should comply with. और कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. हिमांशु जानबूझ के इसको खराब